Okay, okay. Thank you. So, see in the introduction, again I'm repeating the introduction. Correspondence with the debenture holders. Corresponding with the debenture holders, क्या होगा? The capital of the company will be collected by the own capital or the borrowed capital. मतलब कंपनी अपना कैपिटल क्या करती है? कंपनी अपना कैपिटल क्या करती है? ओन कैपिटल के थ्रू भी कलेक्ट करती है और बोरोड कैपिटल के थ्रू भी कलेक्ट करती है. व्हाट इज ओन कैपिटल? अगर कंपनी अपना कैपिटल शेयर के थ्रू शेयर्स के थ्रू कलेक्ट करी है तो उसे कहते हैं हम लोग ओन कैपिटल. क्या कहते हैं उसे? ओन कैपिटल. और अगर कंपनी अपने आउटसाइडर सोर्स से कैपिटल कलेक्ट कर रही है तो दैट इज कॉल्ड द बोरोड कैपिटल. दैट इज कॉल्ड द बोरोड कैपिटल. सो you might be explained or by your teacher what is own capital or what is borrowed capital in the first chapter. Are you aware about the term own capital and borrowed capital? ओन कैपिटल कंपनी का खुद का कैपिटल होता है जो शेयर होल्डर से हम लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं. बोरोड कैपिटल हम लोग आउटसाइडर से कलेक्ट करते हैं. बोरोड कैपिटल के कलेक्ट करने के डिफरेंट थ्री मेथड्स है. वी कैन कलेक्ट द बोरोड कैपिटल फ्रॉम द डिबेंचर, फ्रॉम द बॉन्ड और फ्रॉम द फिक्स्ड डिपॉजिट. ठीक है. सो डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. यानी डिबेंचर क्या है? एक उधारी की एक्नॉलेजमेंट होती है कि हमने क्या किया? उधार कैपिटल लिया है. Debenture capital is a borrowed capital of the company, and the person who contributed capital as a debenture purchasing the debenture, the person is called the debenture holder. जिस person ने debenture purchase किया है वो person को क्या कहेंगे हम लोग? debenture holder. As you know that shareholders are the member of the company, but debenture holders are the creditor. Debenture holders are the creditor of the company. Debenture holders are the creditor of the company. As you know, debenture equity shareholders are getting the dividend, so likewise debenture holder getting the in fixed rate of interest. Debenture holders getting the fixed rate of interest. Debenture holders getting the fixed rate of interest. ठीक है. So debentures are issued for the specific period and it carries a fixed rate of interest on the rate of investment in debenture. Or as compared to equity share, debenture capital is more safe and secured. And information related to debentures or information related to management or information related to debentures interest, repayment of capital, all information which is happening in the company, जो भी information company में ली जाती है regarding the debenture, they should know, debenture holder should know the information. And how they come to know, उनको किस तरह से पता चलेगा कि उनके इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन लिया गया है या उनके रीपेमेंट के बारे में डिसीजन लिया गया है, उनको इंटरेस्ट मिलने वाला ये तारीख को, उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलने वाली है, ये सारी चीज उनको कैसे पता चलेगी? वो कंपनी में तो नहीं रहते हैं बैठे हुए कि हर चीज उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. नहीं, तो वो कंपनी में नहीं होते हैं. इसलिए सेक्रेटरी इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू कन्वे दिस मैसेजेस to the debenture holders by the correspondence. So secretary has to communicate the decisions of the management and other information to the debenture holder by conducting the correspondence. He should be very cautious while corresponding with the debentures holder of the company. When secretary writing the letter, जब secretary क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है किसको? डिबेंचर्स को. So he should be very cautious and careful. उसको कुछ precautions लेने हैं, कुछ क्या करना है? ध्यान में कुछ terms और conditions रखना है कि because he is writing a letter to the debenture holders and debenture holders are the contributor of the company. वो क्या है? हमारे contributor है. So they should not be hurt. उनको किसी तरह से hurt नहीं होना चाहिए. So ये सारे things secretary अपने point में दिमाग में रखकर क्या करता है? लेटर लिखता है. Is it clear? Now certificate of debenture holder. डिबेंचर होल्डर का जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर शुड बी इशूड बाय द कंपनी विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. एज एंड व्हेन द डिबेंचर इज अलॉटेड, जब डिबेंचर अलॉट किया जाता है, सो विद इन द 6 months, उस 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? उनको उनका डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए. कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, नो कंपनी कैन नॉट इशू द डिबेंचर मोर देन 500 पीपल. 500 पीपल के अलावा जब तक वो 500 पीपल के ऊपर वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकती until and unless they are appointing the debenture
ट्रस्टी, जब तक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं होता है तो 500 पीपल से ज्यादा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिबेंचर. और ये पॉइंट आप लोग हमेशा यूटिलाइज कर सकते हो जब भी आप लोग डिबेंचर का आंसर लिखोगे. कहीं पर भी आपको डिबेंचर का रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं पर भी आपको डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पहले यही लिखना है कि कंपनी कलेक्टिंग द कैपिटल बाय द टू वेज, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल. So debenture capital is a borrowed capital. Debenture capital is a debenture capital is acknowledgement of debt. Debenture holder are the creditor of the company. Debenture capital is a safe and secured, as well as debenture is getting the fixed rate of interest, and the it is issued for the it is issued for the fixed specified period. उसके अलावा हम लोग लिखेंगे debenture holders debenture certificate should be issued within the 6 months of the company, and no company cannot issue the more than 500 people to the debenture without appointing the debenture trustee. And understood this point we have to remember while writing the answer of debenture. जब भी हम debenture का आंसर लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमको क्या करना है, कवर करना है. Is it clear my dear? Is it clear everybody? नाउ सोलापुर स्टूडेंट्स जो है हमारे अरबाज है, आसियान है और इरशाद है. कम ऑन डियर, मैसेज में. हाँ, अरबाज, आर यू देयर? अरबाज, अरबाज, हाँ, ओके चलो. नाउ अब कौन कौन सी चीज सेक्रेटरी को ध्यान में रखनी है. देखो, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर्स होल्डर्स. जब सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर से क्या कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर से करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो सेक्रेटरी शुड बी केप्ट इन माइंड, प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल राइटिंग द करस्पॉन्डेंस. जब वो लिख रहा है तो उसको कौन कौन से प्रिकॉशंस क्या करना है, ध्यान में रखना है. तो वेरी फर्स्ट द प्रिकॉशन इज पोलाइटनेस. सेक्रेटरी शुड मेंटेन द पोलाइटनेस, courtesy towards the debenture holders. Secretary should maintain the courtesy. What is courtesy? Courtesy मतलब पोलाइटनेस. courtesy मतलब पोलाइटनेस, मतलब अपने नेचर में सॉफ्टनेस होना चाहिए, रूडनेस नहीं होना चाहिए. रूड हो गए तो क्या होगा, बनने वाला काम भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा. बराबर ना. तो हम लोग को जो लेटर होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, दम तमीज वाला, अदब वाला होना चाहिए, ताकि वो टोन, हमारा लैंग्वेज का जो टोन है वो कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए. ठीक है. बीइंग द क्रेडिटर, ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू डिबेंचर होल्डर इन द सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस. क्योंकि वो जैसे क्रेडिटर हैं तो उन्हें क्या देना है, हमें रिस्पेक्ट देना है. क्या देना है, रिस्पेक्ट. गिवन बाय होम, सेक्रेटरी. ठीक है. द टोन ऑफ लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टियस. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द टोन ऑफ लैंग्वेज शुड बी वेरी कर्टियस. रूड एंड हार्श लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. रूड और हार्श लैंग्वेज क्या होगा, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. एक एग्जाम्पल देती हूँ. मुझे किसी ने ना एक मैसेज, एक इस पे एग्जाम्पल देती हूँ. कोई बच्ची ने मुझे मैसेज किया, ऐसा लिखा, ऐड इन अ ग्रुप. मिस भी नहीं, ऐड दिस नंबर, ऐड दिस नंबर इन अ ग्रुप, ऐड दिस नंबर इन अ ग्रुप. सो जैसे मैंने मैसेज देखा और मैंने उनको रिप्लाई किया, आई एम नॉट योर सर्वेंट, I am not your servant. How we will write a letter, how we will give the message, you are giving a message to the teacher or supervisor, so how you will write, miss please add this number in a group, like this message should be there ना, ये message होना चाहिए. And that girl or that boy, I don't remember the name of that girl or boy, कौन था मुझे याद नहीं है, बस he messaged me, add this number. Add this number, what do you mean by, I am your servant, so I had to add you in a group? No na, right or not? So whenever we give information, whenever we write anything to the any person, so we should be our language should be courteous and the politeness. हमारी language कैसा होना चाहिए, courteous. We should use the please, do the needful. ये सारे words क्या करना है, हम लोग को इस्तेमाल करना है. क्या करना है हम लोग को, please का word इस्तेमाल करना है, do the needful का word इस्तेमाल करना है. Is it clear my dear? सो सेक्रेटरी जब लेटर लिखता है तो सेक्रेटरी की जो लेटर की जो लैंग्वेज होना चाहिए, द टोन ऑफ लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टियस. रूड एंड हार्श लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? कम ऑन डियर, रिप्लाई. हाँ, लाइक दिस यू हैव टू रिप्लाई ना, सो आई शुड गेट, यू आर लिस्निंग मी. गुड.
नाउ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स यानी क्या है? प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स यानी जल्दी से रिप्लाई करना। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स का मतलब है जल्दी रिप्लाई करना। सपोज अस डिबेंचर होल्डर्स आर राइटिंग अ लेटर टू द कंपनी, डिबेंचर होल्डर ने क्या किया है, डिबेंचर होल्डर ने कुछ लेटर लिखा है, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, उनकी कुछ क्वेरी है, तो उन्होंने उस क्वेरी के लिए लेटर लिखा है कंपनी को। तो इसका मतलब कंपनी का मतलब क्या होना चाहिए? जैसे ही कंपनी को लेटर मिला तो कंपनी क्या करेगी? लेटर लेके रख लेगी क्या? नहीं, कंपनी को जैसे ही लेटर मिलता है कंपनी सेक्रेटरी शुड गिव द प्रॉम्प्टली रिप्लाई, क्विकली रिप्लाई टू देम कि उनकी कंप्लेंट क्या है उसका विदाउट अ डिले उनको क्या करना चाहिए? इनका रिप्लाई मिल जाना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स क्या है? सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्टली रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड द क्वेरीज एंड द कंप्लेंट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विदाउट एनी डिले। मतलब उनकी जो भी क्वेरीज है, उनका जो भी कंप्लेंट है, उसका हमें क्या करना है? प्रॉम्प्टली रिप्लाई देना है। एज एंड व्हेन वी रिसीव द लेटर, जैसे ही कंपनी को लेटर मिला है, कंपनी सेक्रेटरी शुड रिप्लाई द कंप्लेंट और क्वेरीज विदाउट एनी डिले। ठीक है। Now the legal provision. Company secretary should follow the legal provisions. What are the legal provisions? See, the secretary should follow the statutory provisions of the Companies Act 2013 and other relevant laws while corresponding with debentures holder. Secretary should be cautious and careful while corresponding with the debenture holders on the legal matters. That means सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या शेयर होल्डर्स हो, एवरीबडी हु इज इन्वॉल्विंग इन अ कंपनीज एक्ट 2013 दे हैव टू फॉलो द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, सम प्रोविजंस फॉर सेक्रेटरी है, सम प्रोविजन फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कुछ प्रोविजंस डिबेंचर होल्डर्स के लिए हैं, कुछ प्रोविजंस बॉन्ड होल्डर के लिए हैं, कुछ प्रोविजंस यानी अलग अलग टर्म्स के लिए, अलग अलग कंसर्न के लिए अलग अलग क्या है? प्रोविजंस बनाए गए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्रेटरी शुड फॉलो दैट provisions while writing the correspondence with debenture holder। जब वो डिबेंचर होल्डर के साथ क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है, उनका करस्पॉन्स कर रहा है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो दे शुड फॉलो द प्रोविजंस। जो प्रोविजंस लिखे गए हैं वो प्रोविजंस को क्या करना है? फॉलो करना है। सेक्रेटरी शुड बी कॉशियस, कॉशियस मतलब एकदम ध्यान से, जिम्मेदारी से, एंड केयरफुली while corresponding with the legal matter। लीगल मैटर अगर ज्वाइन करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ सी, we will continue Arbaz, just you contact me afterwards, okay? You call me dear, you call me, I will clear your doubt on call. Now see, transparency to maintain the greater transparency with the debenture holders। ट्रांसपेरेंसी मतलब के क्लियरेंस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना कि क्लियर दिखा देता है एक दूसरे से, वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्या होना चाहिए? सो जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो डिबेंचर होल्डर्स का पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ उन तक है, उनकी इंफॉर्मेशन कैसी जाना चाहिए? करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। सो to maintain the greater transparency with the debenture, it is necessary to disclose all the correct and accurate information of the company, credit rating of company, ट्रू एंड रियल फैक्ट्स ऑफ द कंपनीज अफेयर्स एंड दैट इज इन करस्पॉन्डेंस। समझा? यानी डिबेंचर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है दैट वी हैव टू डिस्क्लोज करेक्ट एंड एक्यूरेट, टू द डिबेंचर होल्डर। दैट इज क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी। यानी क्रेडिट रेटिंग जो होती है कंपनी की, वो क्रेडिट रेटिंग क्या करना है? हम लोग को प्रॉपरली शो करना है। रियल फैक्ट्स एंड फिगर यानी जो कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है, प्रॉफिट रेट है, वो भी क्या करना है हम लोग को? रियल में जो है वो बताना है, छुपाना नहीं है। किससे? डिबेंचर होल्डर से। जब हम क्या करते हैं? उनके साथ करस्पॉन्डेंस करते हैं, यानी उनके साथ जब हम लोग इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वी हैव टू गिव द करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट क्लियर है सभी को? ट्रांसपेरेंसी वाला। ओके। नाउ कंसाइसनेस मतलब छोटा, ब्रीफ क्या होता है? ब्रीफ। तो लेटर टू डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज। कैसा होगा? छोटा होना चाहिए। बड़े बड़े लेटर नहीं लिखने का, अपन घर वालों को लेटर नहीं लिख रहे हैं, ये क्या है? फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ठीक है। सो लेटर टू डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। सिर्फ कैसा होना चाहिए? पॉइंट तक होना चाहिए। अननेसेसरी और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग को क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है।
प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज मतलब जो इंफॉर्मेशन उनके लिए जरूरी है, जो उनको अपडेट करने वाली इंफॉर्मेशन है वही देना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग को देने की जरूरत नहीं है। तो द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड अ प्रिसाइज एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर. द इंफॉर्मेशन मस्ट बी factual and true. The information which we are giving to debenture holder, that information should be factual and true. वो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट में अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए. द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिसाइज एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन. ठीक है. Secrecy, as you know that a secretary is a confidential officer. Secretary कैसा ऑफिसर होता है? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है. तो सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज अ इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर के साथ सेक्रेटरी जब डील करता है तो सेक्रेटरी अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या नहीं करना चाहिए? शो नहीं करना चाहिए, देना नहीं चाहिए. इज इट क्लियर? फातिमा जबीन, प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स. So secrecy, as a confidential officer of the company, secretary should not disclose any important or secret information related to company while corresponding with the debenture holders. So debenture holder अगर कभी पूछता भी है secret matters company के, तो secretary should tackle that situation very nicely, and they should not disclose, he or she should not disclose the secret or confidential information to the company, to the debenture holders, to the debenture holder. ठीक है. Now image and goodwill of the company. As you know that secretary is the only person who creating the image in the eyes of customers, in the eyes of shareholders, in the eyes of government, in the eyes of debenture holders. So secretary एक बहुत important person होता है जो क्या करता है? कंपनी की इमेज क्रिएट करता है क्रेडिटर्स की नज़र में, शेयर होल्डर्स की नज़र में, डिपॉजिटर्स की नज़र में. तो सेक्रेटरी क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेट करता है, सेक्रेटरी उनके साथ डील करता है, तो गुडविल मेंटेन करने वाला कौन है? सेक्रेटरी है. तो वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर्स, जब डिबेंचर होल्डर के साथ हम करस्पॉन्ड करते हैं तो सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द गुडविल एंड क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ कंपनी इन द माइंड ऑफ कस्टमर. मतलब जब डिबेंचर होल्डर के साथ डील करे तो सेक्रेटरी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हाँ रे कंपनी ऐसी है, कभी इंटरेस्ट नहीं देती है. तो कोई डिबेंचर होल्डर पैसा लगाएगा क्या? नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना. तो सेक्रेटरी क्या होगा? सेक्रेटरी को क्या करना है कि अगर कभी इंटरेस्ट कंपनी ने कम दिया है तो कुछ कैसे टैकल करेंगे कि यू नो द सिचुएशन ना, व्हाट इज गोइंग ऑन, कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इस वजह से कंपनी आप लोग को इंटरेस्ट नहीं दे रही है, कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ऐसे टैकल करना चाहिए. ये नहीं बाबा ये कंपनी में तो ऐसे ही होता है, कभी किसी का सुनता नहीं है, कि कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया आपने, ऐसा बोलेगा क्या? वो ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना. इस तो क्योंकि सेक्रेटरी क्या है? इमेज होल्डर होता है, इमेज क्रिएट करने वाला होता है, कंपनी की गुडविल क्रिएट करने वाला होता है. तो जब भी सेक्रेटरी क्या करता है? डिबेंचर होल्डर से डील करे या शेयर होल्डर से डील करे या डिपॉजिटर से डील करे, किसी भी पर्सन से जब डील करता है तो कंपनी की हमेशा क्या करता है? इमेज को क्रिएट करता है. और इनके माइंड में ये बताता है कि कंपनी ऑलवेज इन द फेवर ऑफ योर्स, यानी आपके लिए ही कंपनी है और आपके लिए ही कंपनी का जो भी काम रहेगा वो आपके बेनिफिट के लिए रहेगा और आपके बेटरमेंट के लिए ही रहेगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? These are the precautions to be taken by secretary. These are the precautions to be taken by the secretary while corresponding to with the debentures holder. While corresponding with the debentures holder. Now the circumstances, कौन कौन से सर्कमटेंसेस है जो सेक्रेटरी क्या करता है? लेटर लिखता है डिबेंचर होल्डर्स को. तो पहला तो देखो क्या है. Good. Now circumstances under which a secretary has entered into correspondence with the debenture holders. तो कौन कौन से circumstances में डिबेंचर होल्डर से वो बातें करता है? तो पहला तो इन्फॉर्म करते हैं कि आपको क्या किया, डिबेंचर होल्डर अलॉट, यानी आपको डिबेंचर अलॉट किया गया है, ये बताने के लिए पहला लेटर लिखेंगे हम लोग. कौन सा लेटर लिखेंगे? कि आपको डिबेंचर क्या किया गया? अलॉट किया गया. सेकेंड थिंग क्या है? इन्फॉर्मिंग अबाउट अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको क्या किया गया? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है. इंटरेस्ट विल बी गेटिंग बाय द इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिक में. इंटरेस्ट उनको इंटरेस्ट वारंट से भी मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक वे से भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं. दो लेटर, तीन लेटर ये हो गए. चौथा लेटर है लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर. अगर कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर लिया है, तो वो अपना कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या कर सकता है? डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी शेयर में. तो अगर हमने उसका डिबेंचर कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर में तो वो इन्फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? लेटर लिखेंगे. एंड द लास्ट लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी जब उनका रिडम्पशन, जब डिबेंचर क्या होता है? उनका रिडीम होता है. डिबेंचर क्या होता है? उनका रिडीम होता है. तब रिडम्पशन के लिए हम क्या करेंगे? उनको लेटर लिखेंगे. तो
ये 5 पॉइंट है जिसमें क्या किया जाता है, सेक्रेटरी लेटर लिखता है किसको, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। अब लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग टू एंड अप दिस मीटिंग, सो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट मीटिंग। आप लोग को